Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss the paper MMPF 003 Management Control System. So, structure of course MMPF 003 are there are four blocks in this course. Block 1, Management Concepts and Context. Management Control Concepts and Context. Block 2, Management Control Structure. Block 3, Management Control Process. And Block 4, Management Control in some special organizations. So now I'm going to start Block 1. Discussion units are Unit 1. This block contains 3 units. Unit 1, Management Concept, Management Control System and Introduction. Unit 2, Strategy and Management Control. And Unit 3, Designing Management Control. So, introduction of this unit and objectives of this unit are to familiarize you with the management control system in general, explain the various concepts of control, contrast management control with a strategic thinking and planning and other control concepts. So next one is provide an overview of new management techniques for management control and implication of new dimensions such as the ethics dimension for management control. So now a structure of this units are introductory part, introduction, nature, definition and purpose of management control, basic concepts and elements, characteristics of management control system, objectives of management control system, types of management control, components or elements of control systems, foreign ownership, control or influence, complex industrial dynamics disaster and management control system, impact of the internet on management control, and last one is general consideration in designing management control system. So now I'm going to start introduction part of this unit. You can see on the screen a management control system maintains a detailed level of oversight over the use of resources within a business. The system assigns responsibility for resource consumptions to various individuals which perform a judged based on their ability to manage resources in the most effective manner possible. The control system works best when performed is tied to the goals of the organization. The information used in a management control system is based on a budget. So budget is an estimated statement prepared by the budget committee or other plan that is compared to actual result, that is a standard costing, actual to budgeted स्टैंडर्ड को जहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसमें कितने डिविएशन हुए हैं वो हम लोग देखते हैं with variances being reported to responsibility centers throughout the organization. So broadly, a management control system refers to the design, installation and operation of management planning and control systems. The term management control system emphasizes two distinct but highly interrelated and sometimes indistinguishable
subdivisions of control systems. The organization structure or relationship among the units or divisions in the organization, more specifically, the responsibility centers, the process or set of activities or a steps decision that are taken by an organization or managers to establish purpose, allocate resources, and achieve organizational purpose. So you can see on the screen responsibility center. So what do you mean by responsibility center? पहले जब ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोलिंग की बात आती थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उस समय क्रिएट नहीं होती थी, बट धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को डेवलप किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जस्ट लाइक पार्टिकुलर एक सेंटर होता है जहां से सारे कॉस्ट को, सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सो अगर आप सोचें कि कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आने से ये हुआ कि एक पर्टिकुलर यूनिट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थी सब उन्हीं को दे दिया गया। अगर कोई भी वेरिएशन होता है, कोई भी वेरिएंस क्रिएट होता है बजटेड और एस्टिमेटेड स्टेटमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे उनको रिपोर्ट करना होता है कि वो वेरिएशन क्यों हुआ, उस तरह के वेरिएंस क्यों डेवलप किए गए। सपोज एन एग्जांपल, अगर बजटेड कॉस्ट लिखा गया है कि 1 लाख रुपीस मटेरियल कॉस्ट में एक्सपेंस होगा, तो अब मटेरियल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 लाख रुपए का मटेरियल सप्लाई कर पा रहा है वर्क इन प्रोग्रेस को या नहीं। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस में 1 लाख रुपीज का मटेरियल कंज्यूम हुआ है तो जो बजट के अकॉर्डिंग आउटपुट होना चाहिए था वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट्स मैटर। सो अगर 1 लाख रुपीज का मटेरियल कंजम्पशन होना है और एक्चुअल जो आउटपुट आया है वो सपोज 1,20,000 आ गया, दैट मीन्स कि यहां पे जो 20,000 का वेरिएंस देखने को मिल रहा है कॉस्ट में, दैट इज एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन 1 लाख था और आपने 1,20,000 रुपये का लगा दिया, तो 20,000 का यहां पे जो एडवर्स सिचुएशन आया तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे होगी, खासकर जो पार्टिकुलर उस डिपार्टमेंट से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जुड़ा हुआ रहेगा। इसी तरह से लेबर डिपार्टमेंट के लिए लेबर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो सकता है कि लेबर कॉस्ट को, वो सारी लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होता है। अगर कोई वेरिएशन होता है तो वहां पे उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और वहां पे आपकी जवाबदेही बनती है कि आपने मैक्सिमम कॉस्ट वहां पे कैसे लगाया, जो कि बजट में इन्वॉल्व नहीं था। So management control is the process by which manager influence other members of the organization to implement the organizational strategy. So they further state management control involves a variety of activities. These include planning what the organization should do, coordinating the activity of several parts of the organization, communicating information, evaluating information, deciding what, if any, action should be taken, influencing people to coordinate other departments. So these are the activities involved in management control systems.
So next topic on the screen is characteristics of management control system. So first characteristics is management control system should be tightly integrated with a company's plan and objectives. So it is very important concern कि जो भी सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं कंपनी के अंदर में, चाहे वो मैनेजमेंट कंट्रोल हो या अदर सिस्टम डेवलप आप कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो प्राइमा फेसी आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी सिस्टम को जब आप डेवलप करते हैं तो वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल कोरिलेट होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल आपके सिस्टम से, आपके प्लान से बिल्कुल मैच होना चाहिए. So first characteristics of management control system are management control systems should be tightly integrated with a company's plan and objective. अगर आप यहाँ पे कंपनी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी सिस्टम को, तो हो सकता है कि वहां पे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, वो फेल हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज management control systems should be tailored to the organizational structure and individual managers decision making responsibility. So second characteristics is very important characteristics. Management control system should be tailored to the organizational structure. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स कि किस तरह से कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयड है, कौन किसका सब कोऑर्डिनेट होगा, किसका क्या वर्क है, किसका क्या राइट है, ड्यूटीज है, ये सभी मेंशन होनी चाहिए और बिल्कुल टेलर्ड होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से बिल्कुल टेलर्ड होना चाहिए कि वो आपका कोई भी एम्प्लॉइज है उसको आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वर्क ही दे जो आपके लिए उसके साथ कोप हो सके. ऐसा नहीं कि उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ और है और आपके सिस्टम के थ्रू उनको वर्क कुछ अलग दे दिया गया है, तो वहां पे वो उसे नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे. सो थर्ड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, effective management control system fulfillment of organizational goals to encourage manager and employees to put out extra effort toward achieving these goals. तो एक जो नॉर्मल कंडीशंस होता है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का स्ट्रैटेजी है, तो नॉर्मल गोल्स को अचीव करने के बजाय जब आप कोई स्ट्रैटेजी, फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी आप तभी बनाते हैं जब आपको मार्केट में सर्वाइवल कैपेसिटी की एसेंशियल ज्यादा होता है. सो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको न्यू स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए, न्यू सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, न्यू सिस्टम को स्मूथली इंप्लीमेंट करवाने के लिए, तो आपको यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाना होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का क्या डिजाइन होना चाहिए, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह के फैक्टर इन्वॉल्व है और किस तरह से उनको वो अफेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें पहला जो फैक्टर है, इंटरप्राइज साइज एंड स्प्रेड. इंटरप्राइज साइज एंड स्प्रेड. A large firm size and a spread will almost certainly differ from those of a small firm. छोटे फर्म का स्ट्रक्चर अलग होगा, बड़े फर्म का स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल अलग होगा. तो डिपेंड करता है
कि इंटरप्राइज साइज कैसा है, बहुत ह्यूज इंटरप्राइज साइज है, तो उसको किस तरह से आपको कौन कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को आप वहां पे टेकल कर सकते हैं. This would almost probably define the content and nature of each organizational control system. So enterprise size and spread दोनों बहुत ही important factors हैं जो कि डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को अफेक्ट करता है. So second one is organizational form, delegation and decentralization. In organizational form, delegation and decentralization in all businesses, statutes and conventions control the structure of other organizations as well as the level of decentralization and delegation. अब आप यहां पे समझेंगे कि डेलीगेशन किस तरह से डेलीगेट किया गया है, वर्क को किस तरह से डेलीगेट किया गया है, और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म किस तरह का है, क्या वहां पे सेंट्रलाइजेशन फॉर्म है या डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म है. अगर सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग हो रहा है तो उसका सिस्टम अलग होगा, डिसेंट्रलाइज है तो उसका सिस्टम बिल्कुल अलग होगा. The State Bank of India's management philosophy, just an example, it's sure to differ from that of the decentralization and delegation within an organizational varies over time to respond to changing environmental problems, over time to respond to changing environmental problems and opportunities. All of these influence management control system that are interconnected. तो आप अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म कैसा है, डेलीगेशन किस तरह का है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है, किस तरह का सिस्टम वहां पे डेवलप है, ताकि आप जब मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करें तो स्मूथली उससे कोप ऑफ कर सकें आप. नेक्स्ट, ऑपरेशनल नेचर एंड डिविजिबिलिटी. ऑपरेशनल नेचर एंड डिविजिबिलिटी, द नेचर ऑफ ऑपरेशंस, क्या लेंदी ऑपरेशन है, शॉर्ट ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है. And their divisibility have an impact on management control system subunits in the all industry. तो यहाँ पे ऑपरेशनल नेचर एंड डिविजिबिलिटी ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपके डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. I have already discussed in previous session कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है. आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्रिएट करना होता है जिसपे सारी जवाबदेही, सारी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर तय रहती है. तो कोई भी डिविएशन होगा तो उसका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को करना है कि वो डिविएशन क्यों हुआ और किस कारण से हुआ है. सो ईच ऑफ an organizational responsibility center or subsystem require a different control system. Whether a responsibility center's performance is measured in terms of expenses, profitability, or return on investment depends on the sort of responsibilities center. So different type of responsibility center भी depend करता है कि किस तरह से वो डिजाइन को अफेक्ट करेगा, किस तरह से डिजाइन को वेरी करेगा. एंड लास्ट वन इज पीपल एंड देयर परसेप्शन. पीपल एंड देयर परसेप्शन, आप अक्सर हाँ ये समझते होंगे कि जो चेंजिंग होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है.
जस्ट एन एग्जाम्पल, एसबीआई पहले मैनुअली वर्क करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनुअल वर्क होता था, कैश बुक मेंटेन करते थे एम्प्लॉइज जो क्लर्क होते थे। आप अगर आज कैश डिपॉजिट किए हैं तो आपको क्विक क्रेडिट शो नहीं करेगा, बल्कि आपको इवनिंग में शो करता था, क्योंकि वो उस वक्त कैश बुक पे नोट कर लेते थे कि आपने पैसा डिपॉजिट किया है, और बाद में उसी को फिर वो क्रेडिट करते थे इवनिंग में। सो यहाँ पे आपको आपके अंदर किस तरह के एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉयज डायनेमिक है जो सारे सिस्टम चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, या चेंजेस होने पे रिएक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ओपिनियंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एक्सपेक्टेड implications on their work life, job happiness, job security, promotion, and overall well-being may vary from one organization to the next. These elements will have a significant impact on the nature and content of the management control system that the organization requires, and they must be considered while developing management control system. So यहाँ पे परसेप्शन किस तरह से है लोगों में, आपकी कंपनी के अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखा गया है, किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉइज को, वो डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। Every subject has an objective, so this is not exception. To show objectives of management control system, first, to keep track of progress. Second one is to find out whether there are any variances, and third one is to indicate that corrective action is required. So first objective, to keep track of progress. The essential aims and objectives of the company are set off throughout the planning process. The control mechanism is required to track progress toward these objectives. मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह से आप बजट जो बना होगा, जो भी एस्टिमेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है। सो वेरिएशन यहाँ पे होने की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम हर एक फंक्शन पे अपना नजर बनाए हुए रखता है कि कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहाँ पे मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, लेबर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, इन सब पे उनका ध्यान रहता है। तो इसीलिए प्रोग्रेस किस तरफ जा रहा है, क्या बजटेड प्रोग्रेस हमें अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम कितना बेटर पोजीशन में है। सो सेकंड, टू फाइंड आउट whether there are any variances. So मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम अगर आपका बिल्कुल सही है तो बजट जो बना होगा और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस वहां पे आपको मिल रहा होगा, जो आउटपुट मिल रहा होगा, उससे आप कंपेयर करेंगे। सपोज जस्ट हमने प्रीवियस में ये एग्जांपल आपको दिया था कि अगर बजट में बताया गया है कि 100 किलोग्राम मटेरियल यूटिलाइज होगा, और अगर वो मटेरियल 110 किलोग्राम यूटिलाइज हो गया, दैट मीन्स कि आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने 10 किलोग्राम मटेरियल ज्यादा कंज्यूम किया है। दैट मीन्स जो ये 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा मटेरियल कंज्यूम हुआ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एडवर्स सिचुएशन। एंड वेरिएंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपली जो बजट के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया था जो मटेरियल का साइज,
उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट नहीं आया, आपने ज्यादा कंज्यूम किया मटेरियल, दैट मीन्स कि वेरिएंस जो वहां पे आया उसको ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होगा तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो वेरिएंस को फाइंड आउट करेगा, उसका पता करेगा कि एडवर्स सिचुएशन है या फेवरेबल सिचुएशन है। आप अक्सर एडवर्स सिचुएशन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये हो सकता है कि बजट में बोला गया है कि 100 किलोग्राम कंजम्पशन होगा मटेरियल का, बट वहां पे 95 किलोग्राम में ही काम हो गया। दैट मीन्स आपने बजट से भी कम मटेरियल में आपने अपना काम पूरा कर दिया, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन। वो आपका फेवरेबल कंडीशन है, वेरिएंस है लेकिन पॉजिटिव वेरिएंस है, निगेटिव वेरिएंस आपका नहीं है। और थर्ड सिचुएशन ये होगा कि जितना बजट में बोला गया है, जितना बजटेड आपका एस्टिमेट किया गया था मटेरियल का, आपने उतना ही कंज्यूम किया, दैट मीन्स देयर इज नो वेरिएंसेस बिटवीन बजटेड और एक्चुअल आउटपुट। So third one is to indicate that corrective action is required. अगर आपको पता चल गया है कि कहीं पे वेरिएंस हुआ है, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हुआ है, या तो लेबर ने सही तरीके से काम नहीं किया या सुपरवाइजर ने ठीक तरीके से वर्क नहीं किया, जिसके कारण आउटपुट आपको जो बजट का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिला है, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत होगी। सपोज अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया कि मटेरियल 100 किलोग्राम यूज होना चाहिए था, लेकिन मटेरियल 110 किलोग्राम यूज हो गया, दैट मीन्स 10 किलोग्राम आपने जो ज्यादा कंज्यूम किया, तो ये ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ लेबर, बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके कंपनी को लॉस में लेके जा सकती है। तो वहां पे वेरिएंस जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको उस वेरिएंस को सही करना होगा, करेक्टिव एक्शन लेना होगा कि किस तरह से आपको उसको मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। So next topic on the screen is types of management control system. So control system is an organization fall under two broad areas, formal and informal. Formal controls are laid out in writing by the management, whereas informal controls arise as a result of employees' behavior. So there are two types of management control system. First is called formal control system and second one is informal control system. आपने formal, that means through the proper channel, जो प्री डिफाइंड प्रोसेस किया गया है, पहले से वो डिफाइंड है कि आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, वो रिटन फॉर्म में है, मैनेजमेंट ने उसको रिटन फॉर्म में बनाया है, लिखा हुआ है, तो आप उसको ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक फॉर्मल होता है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सिस्टम प्री डिफाइंड होता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं, बिकॉज कि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो थ्रू द प्रॉपर चैनल आपको जाना होगा, आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, वहां के पीए आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री है वहां पे आपको एक्सेप्ट करेगा आपका एप्लीकेशन या नहीं करेगा, एक्सेप्ट किया तो क्या टाइम देगा, तो उसके थ्रू आपको जाना होगा। आप डायरेक्टली किसी फॉर्मल सिस्टम में डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाएंगे, जो वो सिस्टम डेवलप किया है उसी सिस्टम के थ्रू आपको जाना होगा। तो और इनफॉर्मल सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली जब ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि लोग जब एक जगह मिलते हैं तो बहुत सारे बातें होती हैं, लोग अपने ही मन की बातें करते हैं, साइकोलॉजी है ये।
तो इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो काम फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं करता है वो इनफॉर्मली हो जाता है। लाइक ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि अगर आप लेबर को मशीन समझते हैं तो ये फॉर्मल हो गया कि लेबर एक मशीन है, उसका कोई इमोशन नहीं है, किसी तरह का कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो दैट इज फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ रही है कि नहीं, लेबर में भी लाइफ है, लेबर का भी अपना इमोशन होता है, उसके भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो ये इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो कभी कभी फॉर्मल में वो बातें सामने नहीं आ पाती है जो इनफॉर्मल में सामने आ पाती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि दो तरीके का सिस्टम अक्सर हाँ ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होना चाहिए, एक फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा जो है इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंपोनेंट्स मीन्स कि कंट्रोल सिस्टम, जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह से कंपोज हुआ है, उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को बेहतर तरीके से बना सकता है। तो देयर इज फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लानिंग, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। Second one is hierarchy of control, that is a strategy, management control, and operational or task control. Third one is organizational structure and control process. Fourth one is corporate culture, reward, compensation, and sixth one is communication and integration. So component में सबसे पहला जो आप देख रहे हैं कंटेंट, वो है प्लानिंग, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ पोस्ट कॉर, इट इज propounded बाय लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी आप सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें प्लानिंग सबसे पहला फैक्टर होता है कि आप उसको प्रॉपर वे में प्लान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानिंग इसेंशियल फंक्शन होता है किसी भी सिस्टम का, और आप उसे ठीक तरीके से अगर करेंगे तो आपका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम बेटर पोजीशन में होगा, अच्छा सिस्टम में होगा। सेकंड पार्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स कि आप मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो डेवलप आपने किया है वो किस लिए किया है, उसका क्या एरिया होगा, क्या एरिना होगा, वो किस लिए आपने डेवलप किया है, वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ये सिस्टम आपके पास होनी चाहिए, दैट इज मेजरमेंट। एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम मीन्स कि आपका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर में एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो जो भी काम, जो भी वेरिएशन या जो भी काम अभी चल रहा है उसका टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम वो रिपोर्ट करता रहे आगे अपने जो सीनियर्स है उनको, या आगे जो सिस्टम में आगे जो जुड़े हुए उनको वो रिपोर्टिंग करता रहे। सेकंड वन इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल। दैट मीन्स ये बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी के सबसे बड़े पद पे एम्प्लॉयड है दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है सबसे बड़ा होता है, और उसके नीचे आप देखेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एमडी। फिर उसके नीचे आप देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ। फिर सीईओ के अंदर में डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं लाइक मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर एटसेट्रा। अब उन सभी के अंदर यानी सब ऑर्डिनेट में आपके रहेंगे सुपरवाइजर्स, और सुपरवाइजर्स के नीचे रहते हैं लेबर्स। तो ये जो हायरार्की है बिल्कुल प्री डिफाइंड होता है
ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल का हायरार्की बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए कि कौन कंट्रोल करने के लिए कौन लायबल है, किसके पास राइट है, किसके पास ड्यूटीज है, वो काम करने के लिए ये प्री डिफाइंड होनी चाहिए। अगर पहले से ये डिफाइंड नहीं होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और जो जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो इफेक्टिव आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी हम अभी आपको बताए हैं, एंड कंट्रोल प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल प्रोसेस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयड है, पहले से जो एम्प्लॉयड है, जिस भी पोस्ट पे एम्प्लॉयड है, और आप कोई एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग भी वर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्क जो भी एक्सटेंड होगा उसको कौन एम्प्लॉय करेंगे, कौन एम्प्लॉय को एडिशनल वहां पे चार्ज दिया जाए, जो रेगुलर वर्क के साथ साथ जो एडिशनल सिस्टम डेवलप किया गया है उसके वर्क को भी साथ साथ कर सके। सो ये बहुत ही जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल प्रोसेस दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए कि किस तरह से वो वो काम करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कल्चर भी पहले हमने डिफाइन कर दिया है कि कॉर्पोरेट कल्चर की, कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा है, किस तरह से ट्रेडिशन यूज होते हैं, वहां पे कल्चर में किस तरह की कंपनी है, इसमें साइज भी आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएगा, नेचर भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो भी आपको मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को जब वो प्रिपेयर होता है तो उसमें कॉर्पोरेट कल्चर का भी पार्टिसिपेशन होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर आपका कैसा है, किस तरह से आप कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर में। नेक्स्ट वन इज रिवार्ड कॉम्पनसेशन। यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का एक जो कंपोनेंट है वो रिवार्ड एंड कॉम्पनसेशन है। दैट मीन्स कि अगर सिचुएशन एडवर्स है तो वहां पे आप रिवार्ड तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका बजटेड वर्क था उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, निगेटिव इन्फ्लुएंस है आपका, तो वहां पे तो रिवार्ड नहीं हो सकता है। बट अगर आपका बजटेड एरिया से आपने कम में काम कर लिया है, दैट मीन्स कि फेवरेबल कंडीशन है आपका, तो वहां पे आपको रिवार्ड दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड अगर किन्हीं का कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है या कुछ इस तरह के कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है सिस्टम के अंदर, तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको देखना होता है कि रिवार्ड्स और कॉम्पनसेशन का एरिया हम कैसा रखें, किस तरह से उसको हम फंक्शनेट करें। सो नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप जानते होंगे कि मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम जब तक कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं होता है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम फेल है। लाइक कम्युनिकेशन का जो आप 7 प्रोसेस पढ़ते हैं, लाइक सबसे पहले सेंडर होता है जो कोई मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा, है ना, फिर मैसेज बनाएगा, कंटेंट करता है, उसमें कुछ इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग करने के बाद वो मैसेज बनता है, और मैसेज को फिर आप ट्रांसमिशन के थ्रू क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कि आपको कहां सेंड करना है इसके अकॉर्डिंग आप चैनल को चूज करते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए या स्लो रिस्पॉन्स चाहिए। एंड देन जिसको आप सेंड किया है, जिसको भी आपने सेंड किया है उस तक वो मैसेज पहुंच जाता है। दैट मीन्स कि वो रिसीव कर लेता है आपके मैसेज को, आपके कम्युनिकेशन को वो रिसीव कर रहा है। अब रिसीव करने के बाद जो वहां पे रिसीवर है
वो आपने जो मैसेज लिखा है उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। एंड डिकोड करने के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें स्टेप होता है वो होता है फीडबैक, कि फीडबैक आपके रिसीवर ने दिया है या नहीं दिया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है वो है फीडबैक, क्योंकि अगर फीडबैक मिलेगा तभी वो कम्युनिकेशन सक्सेस माना जाएगा। अगर फीडबैक नहीं मिला है तो वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। अब डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस डिपार्टमेंट, फिनिश्ड गुड्स डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट्स के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये डिपेंड करता है कि उन सब में इंटीग्रेशन का क्या फॉर्म है। और ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या वहां पे ऑप्शंस रखे हुए हैं। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या एक डिपार्टमेंट के बिना दूसरे डिपार्टमेंट का काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके कॉरपोरेट के अंदर किस तरह का कल्चर डेवलप है। लाइक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोग्रेस, तो दोनों के बीच में डायरेक्टली लिंक होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल यूज होता है। अब वर्क इन प्रोग्रेस आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो तुरंत वर्क इन प्रोग्रेस वहां पे मैसेज करेगा, कम्युनिकेट करेगा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को कि आप हमें रॉ मटेरियल भेजें, सेंड करें, ताकि वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहे और फिनिश्ड गुड्स आउटपुट में मिलता रहे। सो कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको डिनाई नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कुछ सक्सेस डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन किस तरह का है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ओनरशिप, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, FOCI। और प्रीवियस में कम्युनिकेशन का एक पार्ट हम और डिस्कस करना चाहेंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जो कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हो जाते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही पैदा होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। बैरियर्स में आप देखेंगे नॉइज है या परसेप्शन है ना, तो सिमेंटिक प्रॉब्लम है। सिमेंटिक प्रॉब्लम दैट मीन्स कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयड होते हैं। लाइक आप ही का कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से साउथ के लोग भी आए होंगे, नॉर्थ के लोग भी एम्प्लॉयड है। अब आप देखेंगे कि साउथ के लोगों को इंग्लिश और कन्नड़ या मलयालम इसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो आप अगर हिंदी में कम्युनिकेशन करेंगे तो वहां पे वो समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए या तो मलयालम या तो इंग्लिश आप बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सिमेंटिक प्रॉब्लम का भी काफी ध्यान देना चाहिए कि जो डुअल डुअल मीनिंग है उससे वो बचे, डुअल डुअल मीनिंग से बचे, ताकि वो कम्युनिकेशन सक्सेस हो सके। And next topic is foreign ownership, control or influence, FOCI. When a foreign interest has the power, direct or indirect, whether exercised or not, and whether or not exercisable, to direct or decide matters affecting the management or operations of a company in a way that could result in unauthorized access to classified information or adversely unauthorized access to classified information or adversely affect the performance of classified contracts. The company is considered to be operating under FOCI.
So there are so many factors relating to a company. The following factors relating to a company: the foreign interest and the government of the foreign interest are reviewed in the aggregate in determining whether a company is under FOCI. So first one is record of economic and government espionage. Second one is record of enforcement and engagement in unauthorized technology transfer. And third one is the type and sensitivity of the information that shall be assessed. तो यहाँ पे देखना होगा कि आपका इंफॉर्मेशन का सेंसिटिविटी कितनी है। क्या वो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लीगल है, जिसको कि किसी को भी एसेस करने नहीं दिया जाए या एसेसमेंट छोड़ दिया जाए। अगर उस तरह की कोई नॉन जनरल इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए इस तरह का कोई भी हिडन कॉन्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज द एक्सटेंट ऑफ FOCI. फोर्थ वन इज record of compliance with laws, regulations and contracts. जो भी फॉरेन ओनरशिप के अंदर में जो भी लॉज, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट है, उन सबको कंप्लायंस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी लॉज, रेगुलेशंस आप फॉरेन ओनरशिप को ये जनरेट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन ओनरशिप में जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी रूल्स होंगे, वो आपको फॉलो करना है, कंप्लायंस करना है और उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना पड़ेगा। Next one is the nature of any bilateral and multilateral security and information exchange agreements that may pertain. Next one is ownership or control in whole or in part by a foreign government. So next topic is complex industrial dynamics, disaster and management control system. A business is a collection of complex processes that function as an integrated system of information networks, which we must recognize. तो यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जो भी सिस्टम आपका डेवलप है, वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉइज को इसके बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि एम्प्लॉइज ही अगर नहीं जानेंगे तो आपका जो सक्सेस रेट है वो काफी हद तक कम जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस नेटवर्क अपीयर्स इन सेवरल लोकेशंस अक्रॉस द कंट्रोल सिस्टम and has an impact on the physical processes of the company. Third one is a well-managed management control system identifies the flow of information across the company's physical processes. The management control system facilitates the identification of the interlocking network of information, allowing suitable decisions to be taken. A business may be confronted with adversity regularly. Disaster is a rare occurrence that needs the mobilization of all available resources to mitigate its effects. So it is desirable to have a built-in mechanism in the management control process that can detect a disaster, prepare for it, and respond accordingly, minimizing the disaster's after effects. A good management control system should contain a technique to reduce the impact of a disaster on business processes. तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम में आपको पहले से ही इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर कोई बिजनेस प्रोसेस में डिजास्टर आता है, किसी तरह का इरेगुलरिटीज आती है,
तो आपकी टेक्निक इतनी इंप्रूव होनी चाहिए कि उस डिजास्टर से बच सके, उस डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट, every modern day information technology organization has a specialized shell dedicated to disaster preparedness, as is common knowledge. Two examples are physical site readiness and system level readiness. So ethics and management control system. कोई भी सिस्टम को इथिकल पॉलिसी को फॉलो करना है, इथिकल जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है। सो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एंड इथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इन रिसेंट टाइम्स द इथिकल डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड कंडक्ट हैज रिसीव्ड वाइड अटेंशन in the field of management. Several organizations have drawn up ethical codes of conduct. However, we need to answer the following questions. Why do individuals in organization indulge in unethical conduct and unethical practices? तो इंडिविजुअल क्यों अनइथिकल प्रैक्टिस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्यों उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके नेचर को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको कहीं पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आप इलीगल प्रैक्टिस की ओर चले जाते हैं। तो वहां पे ये ध्यान देना होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉइज, एक इंडिविजुअल, वो ऐसे कौन कौन से रीजन है कि वो इन मेल प्रैक्टिस की ओर बढ़ जाते हैं, इलीगल प्रैक्टिस की ओर बढ़ जाते हैं। सो द आंसर टू दिस कुड बी शॉर्ट इन द फॉलोइंग टू एक्सप्लेनेशंस। द ओवरऑल एनवायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स इज वन ऑफ करप्शन एंड मोरल डिके, लीडिंग टू द legitimization of unethical behavior on the part of citizens. This is a macro level problems that should be tackled by the enlightened citizens of the nation through a collective voice and collective choice. At the organizational level, ethical failure occurs because norms are not properly designed. Ethical failures are essentially control failures. अगर सिस्टम में इथिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, इथिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया है, इलीगल प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉइज वहां पे अनइथिकल कंडक्ट कर रहे हैं, अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यानी आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अनइथिकल प्रैक्टिस कंट्रोल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। While internal auditing can check frauds and misappropriation, ethical misconduct can be checked only through properly designed norms and standards. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑडिट किया जाता है, ऑडिटिंग प्रोसेस किया जाता है, तो आपका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जितना बेटर होगा, ऑडिटर को उतनी ही इजी होगा ऑडिट करने में। बिकॉज अगर सिस्टम डेवलप नहीं है तो वहां पे फ्रॉड होने की चांसेस काफी बढ़ जाती है, और ऑडिटर को भी डेटा कलेक्ट करने में, एविडेंस को कलेक्ट करने में काफी परेशानी होती है। तो अगर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम आपका बिल्कुल इथिकली वर्क कर रहा है तो वहां पे ऑडिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है। Maseriolo and Kirby provide a cybernetic model of instituting ethics programs in organizations. This model, in its simplified version, is as follows. Decide the desired state. Set the ethical goals in terms of compliance with all laws. Translate the ethical goals in terms of code of conduct and ethics पॉलिसीज। इन सब के बारे में बिल्कुल आपको क्लियर कट होना चाहिए कि हमारा इथिकल पॉलिसी क्या है, कोड ऑफ हमारा कंडक्ट क्या है,
और वो सभी को कंप्लायंस करना चाहिए, सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। मेजर द current state, find the current state of compliance with laws and find the deviations from the code of conduct. In essence, conduct an ethical audit. Initiate remedial action, investigate the alleged violation, and initiate remedial action to ensure that the loose ends are tightened and to prevent the recurrence of unethical practices, issues proper warning signals to prevent unethical behavior. It is better to foster ethical behavior than to the polish, catch, and punish unethical behavior. Those indulging in unethical behavior may need ethics, counseling for moral and ethical correction. तो जो अनइथिकल प्रैक्टिस में इंडल्ज हैं, मिले हुए हैं, तो उनको काउंसलिंग करवाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप जो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में काफ़ी मेहनत लग सकती है और वो पूरा हो भी नहीं सकता है। जहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वर्क करने लगता है रादर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली वो कभी भी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे 6 स्टेप डेवलप किया गया है। द फॉलोइंग 6 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग इथिकल बिहेवियर एंड प्रिवेंटिंग इथिकल वायलेशंस। Step 1, goal setting, achieve compliance with laws, ethical codes, and policies of the organization. Step 2, sensitizing, sensitize all managers and employees as to what kind of behavior constitutes unethical behavior. Step 3, ethical audit, audit the behavior of employees concerning norms, standards, and code of conduct. Step 4, reporting, report significant deviations from ethical conduct. Step 5, investigation, investigate alleged violations. Step 6, remedial action, implement decision to correct improper behavior. तो ये सारे चीज आपको देखने पड़ेंगे और डिफाइन करना होगा कि क्यों कोई अनइथिकल बिहेवियर की ओर मूव करता है। Last one is impact of the internet on management control. Last topic. The information revolution began with the invention of the computer and escalated in 1990s with the introduction of the internet. The internet offered significant advantage in the following ways. So internet का इम्पैक्ट जो है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम पे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिसमें वन है ईज ऑफ इंस्टेंट एक्सेस। आप इजी से एसेस कर सकते हैं, इंस्टेंट एसेस कर सकते हैं। मल्टी टारगेटेड कम्युनिकेशन, एक साथ आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं कॉल को। नो कॉस्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। So in individualing authority and control. So general consideration in designing a management control system. Management control system is a function of management that helps to check errors, to take corrective action. This is done to minimize deviation from standards and ensure that the stated goals of the organization are achieved in the desired manner. Effective management control is needed by every organization, but how to create it? In other words, what are the prerequisites of an effective management control system? So general consideration में आप 4 बात रख सकते हैं। Top management responsibility, organization, a specific goal congruence, management motivation, fairness or objective. So this block is completed and thanks for watching. I will discuss next unit for next class in next class. So thank you.
24 मैं क्या गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? ठीक है मैम, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है। आवाज तो क्लासेस भी सुबह में लिया था, तो स्टूडेंट से पूछ भी रहे थे कि समझ में आ रहा है ना? तो उस दवा नहीं लिए? दवा लिए थे, एजिथ्रोमाइसिन और एलसीटी मैंने लिया था, और थोड़ा गार्गल वगैरह करते हैं। क्यों बाहर घूमने से हो गया? मैं उधर गर्मी था मुंबई में, उधर शर्ट पहन के भी पसीने आ रहा, स्वेटिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ आए तो इतनी ठंड थी, हमें लगता है उसी में थोड़ा सा हो पाएगा। इनको बेटा वो क्या कर दीजिए, दीजिए ना, मेरे पास है, तो ये हमने कैसे वो होती थी, हां वो दे दे बाकी सब हमको दे, हां दोनों और प्लस भी हो। चलिए फिर मैं अभी चलिए, जल्दी हो रहा है, लंच लाए हैं तो लंच करिए। अरे लाए हैं पानी दे दो, पानी तो नहीं पूछे हैं, लंच को आइए।